कल के लेक्चर तक किसी कोई डाउट? यस, यू कैन टाइप योर डाउट. नो. रितेश, कोई डाउट नहीं? ओके. विकास सर, इधर नहीं आ रहा है. ये मैंने शेयर किया. अच्छा, हाँ करना था. ये स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं लग रहा है अब तक? So let's revise for 2 to 5 minutes. कल के लेक्चर में आपको याद होगा, तो we completed the types of offer, kinds of offer, how it is made and to whom it is made. Okay, if I use the word how it is made, then offer is of two types. One was express offer, another one was implied offer. Okay, and to whom it is made, if I take that basis, then the kinds of offer we discussed were 5 different types of offers. The first one was general offer. According to me, it is very important. Then we discussed specific offer, or you can say special offer, given to a specific person. Okay, and only that person has right to accept that offer and no other person. जिसको ऑफर दिया जाए, only that person will accept that offer. That is what we use the word special or specific offer. This offer can be given to a certain person or group of person also. ये क्लियर किया हमने. It can be either given to a specific person or it can be to a specific group of persons. Okay. Then we discussed cross offer. Little bit technical language was used. Cross offer में what I said, when we read prima facie मतलब पहली नजर में जब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन से ये बात क्लियर है कि whenever there is cross offers, there is no acceptance, and that's why cross offer does not create any legal obligation, and therefore cross offer, since it is not accepted, assumed to be not accepted, okay, it is indirectly not treated as contract. We have discussed that क्रॉस ऑफर में ज्यादातर एग्जाम्पल में बाय पोस्ट जब हम ऑफर देते हैं, बराबर है, और सामने वाला भी सेम ऑफर हमको देता है बाय पोस्ट विदाउट नोइंग ईच अदर ऑफर, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर. वी हैव डिस्कस दैट इन डिटेल. कल बहुत ज्यादा वक्त लेकर हमने डिस्कस किया. ओके स्टूडेंट्स, next we discussed counter offer. Again, very important point. Counter offer indicates what? It's a one type of rejection of original offer. I hope it is clear. It was clear yesterday. Okay, where we accept offer with certain condition or modification. Okay, that means सामने वाले के दिए हुए ऑफर में हम कोई चेंजेस करके इनडायरेक्टली उसको कोई और ऑफर दे रहे हैं. So that is called counter offer.
Okay, and then last what we discussed was standing or continuing offer or open offer. The best example was tender. Okay, टेंडर वाला एग्जाम्पल ये हमेशा याद रखना. तो आपको स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर एंड इवन अपना डे टू डे लाइफ में भी आपने देखा होगा ऑफर लास्ट टिल 31st दिसंबर, ऑफर टिल दिवाली एंड सो ऑन. ऐसे जब ऑफर्स आप पढ़ते हो तो indirectly that is standing or continuing or open offer. So yesterday we discussed all the meaning. Okay, I was expecting some doubts, but I think there are no doubts. So can we continue next? I think almost students have joined. Can we continue? Okay, so then we started essentials of valid offer. Okay, student, essentials of valid offer. Usme I think first 2 points I have discussed. You can see on the screen the first 2 important points what we discussed yesterday. Essentials of valid offer में the first one was कि ऑफर जब हम किसी को देते हैं तो ये इंटेंशन से दो कि दैट ऑफर शुड क्रिएट लीगल रिलेशंस. अगर हमारा ऑफर जो है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ना करके कोई सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करता है तो वो ऑफर जरूर है बट लीगली वी कांट से इट इज वैलिड ऑफर. ओके, सो व्हेन आई यूज द वर्ड वैलिड ऑफर तो ऑफर ऐसे दो कि इट मस्ट बी विथ इंटेंशन टू गिव अ राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और लीगल रिलेशंस. then only we in the eyes of law we can say it is a valid offer. and valid offer को जब कोई validly acceptance देगा तब जाके हम उसको contract बोलेंगे. okay, which is enforceable by law. so I think first point we have already discussed in our previous lectures also. initial lectures में भी हमने ये सब discuss किया था, याद होगा तो social invitation was the example. ओके मैंने एक सीए स्टूडेंट्स के लिए बोला भी था कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये आपको क्वेश्चन आता है 4 to 5 मार्क्स का तो दैट व्हाट यू हैव टू डिस्कस by giving or quoting the examples of social invitation examples and all. Is that okay, student? Then second point what we discussed yesterday, that was that offer, किसी भी ऑफर को अगर वैलिड करना है तो वो ऑफर सर्टन होना चाहिए. सर्टन मतलब उसके टर्म्स जो हम बोलते हैं ऑफर में, जो हम टर्म्स रखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सर्टन होने चाहिए, उसमें सर्टनटी होनी चाहिए. फिर उसके क्वांटिटी को लेकर हो, प्राइस को लेकर हो, क्वालिटी को लेकर हो, प्लेस को लेकर हो, पर्सन को लेकर हो. तो जब भी हम कोई वैलिड ऑफर बोलते हैं कि वैलिड ऑफर दिया तो दैट वैलिड ऑफर शुड बी सर्टन, डेफिनिट, बराबर है, एंड नॉट वेग. वेग स्टेटमेंट नहीं देने का. वेग स्टेटमेंट मतलब क्या कि इनडायरेक्टली ऑफर दे भी रहा हूं, नहीं भी दे रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट आपका. सामने वाले को ऑफर एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, गेटिंग दैट, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो अपना एक्सेप्टेंस देगा. सो these 2 points yesterday we discussed. Okay, then the third important point today which we are going to discuss now is a point that इसके ऊपर कभी कभी केस स्टडी भी आ जाता है. सीए स्टूडेंट्स यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. पॉइंट नंबर 3, बच्चों ऑफरर, कैन आई यूज द वर्ड ऑफरर नाउ, बराबर है. ऑफरर जब ऑफरी को ऑफर देता है तो ऑफर ने ये इंश्योर करना है कि उसका दिया हुआ ऑफर ऑफरी के समझ में आया है. इट शुड कम इन द नॉलेज ऑफ एन ऑफरी. अगर मैं आपको ऑफर देता हूं, बरोबर है, तो वो ऑफर का पूरा आइडिया आपको क्लियर है कि नहीं, ये भी मुझे जानना जरूरी है. इसका मतलब क्या हो गया पॉइंट नंबर 3 में कि ऑफरर ने क्या करना है, अपना ऑफर जो है दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी.
वो ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ कि नहीं, ऑफरी ने उसे अंडरस्टैंड किया कि नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। गेटिंग दैट? एंड आपको पता ही, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त केस में क्या हुआ था कि सर्वेंट ने मिसिंग बॉय को ट्रेस किया, बट ही वाज नॉट नोइंग अबाउट ऑफर। दैट मीन्स ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द सर्वेंट. When offer was not communicated to the servant, how did he accept that offer? And that was the reason servant legally cannot claim reward from the master for tracing that missing boy. I hope you get this point, student. So you must assure that or ensure that whatever offer you are giving to the offeree, वो उसे कम्युनिकेट हुआ कि नहीं. बच्चों कभी कभी क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कभी कभी ये हो सकता है, गेट माय पॉइंट, कि मैं आपसे मोबाइल पर बात कर रहा हूं एंड आई एम गिविंग ऑफर ऑन मोबाइल. आप मोबाइल को सुन रहे हो लेकिन मेरी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है, एंड आप कह भी रहे हो कि सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सुनाई नहीं दे रही है, एंड मैं आपको ऑफर दे रहा हूं. तो मैंने ये भी इंश्योर करना चाहिए बाद में वापस कि मैं जब आपको ऑफर दे रहा था, आवाज ब्रेक हो रही थी, तो क्या मेरे ऑफर के बारे में आपको पूरी तरह से समझ में आया. ये भी इंश्योर करना ऑफरर का काम है बच्चों. मैं क्या कर रहा हूं समझ लीजिए. अभी आपको मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, आप हाँ हाँ बोल रहे हो, तो मैं ये थोड़ी अजम्पशन करूंगा कि यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको ऑफर को वैलिड करना है तो ऑफरर का ये काम है कि उसने अपना ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट कर देना चाहिए. ओके, इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. सो लेट अस रीड दैट पॉइंट नंबर 3. इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. बाद में एक्सेप्ट करे कि नहीं एक्सेप्ट करे, दैट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू. एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्टर बन जाएगा, रिजेक्ट करेगा तो स्टिल ही विल रिमेन ऑफरी. ओके, सो पॉइंट नंबर 3, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. इट मस्ट मतलब ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. एन ऑफर टू बी कंप्लीट, ऑफर तभी कंप्लीट माना जाएगा व्हेन इट इज communicated to the person to whom it is made. And you know the person to whom the offer is made is offeree, you know that. So ऑफर को कंप्लीट करना है, कंप्लीट ऑफर को अगर अराइज करना है तो दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट. बच्चों इट इज नेचुरल if I don't understand what you are saying, okay, how can I give my acceptance to that? आपका प्रश्न ही मुझे नहीं समझा तो मैं आपका आंसर कैसे दे सकता हूं? as simple as that. Okay, so unless an offer is communicated, there can be no acceptance by it. An acceptance of an offer in ignorance of offer, again that statement, Lalman Shukla versus Gauri Dutt. An acceptance of an offer in ignorance of the offer without knowing of the offer is not an acceptance and does not confer any right on the acceptor. And this can be illustrated by the landmark case. Landmark matlab very important case, historical case, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो सीए स्टूडेंट यहां जरा ज्यादा ध्यान देंगे कि दिस केस लॉ इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ. ओके, इसका एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना इसे. ठीक है बच्चों. एंड अब उस लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त का केस क्या था, फैक्ट्स क्या है, अब वो मैं रीड नहीं कर रहा हूं बच्चों. आप उसके नीचे देखो फैक्ट्स लिखा है, आप उसको रीड करो एंड टाइप करो यस नो में समझा कि नहीं.
ओके, रीड दैट। कौन सर्वेंट था, सर्वेंट का नाम क्या था? बरोबर है। मास्टर का नाम क्या था? पढ़ो जरा, देखो। सभी बच्चे रिस्पॉन्स देंगे बच्चों, सिर्फ 10-12 बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब मैं बहुत खुश हूं, ऐसा नहीं है। एवरीवन लिसनिंग लेक्चर मस्ट टाइप आंसर। हैव यू अंडरस्टूड दिस केस? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। स्टोरी जैसा पढ़ो ना, एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। अब बच्चे एक आंसर दो टाइप करके। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हेल्ड? देखो ना, हाईलाइट किया है, देखो, हेल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हेल्ड? मैंने बताया था, इसलिए पूछ रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, वेरी गुड। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। जजमेंट, जजमेंट आया। हेल्ड का मतलब कभी भी याद रखना बच्चा, हेल्ड लिखा है मतलब ये, इसके हेल्ड के आगे जो लिखा है वो कोर्ट का जजमेंट है, वो कोर्ट का जजमेंट है। लाइफ लॉन्ग ये नॉलेज है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सीए स्टूडेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखना, आपको आगे जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, लॉ पढ़ेंगे, तो ये शब्द आपको बहुत बार आएगा सामने। ओके, एनीवे बच्चा, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट इन पॉइंट नंबर 3। ओके, लेट अस कवर फोर्थ पॉइंट, वैलिड ऑफर का। और एक लीगल पॉइंट क्या है, देखो। आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द डेफिनेशन ओनली, कि अगर मैं सामने वाले को अपना कुछ विलिंगनेस एक्सप्रेस करता हूं, तो उसके पीछे इंटेंशन होना चाहिए सामने वाले का एक्सेप्टेंस लेने का। इट शुड नॉट बी अ मियर expression of willingness. It should be backed by intention of getting assent of other party. I hope you understand the word assent. Assent मतलब सामने वाले का acceptance लेना। I think this is what we discussed in definition itself. So I don't think कि इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट होना चाहिए। I think this is clear because we have discussed already in the definition. Okay, just I read that. What is the given point number 4? कि अगर वैलिड ऑफर को अराइज करना है तो ऑफर कैसे होना चाहिए? इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ अदर पार्टी। ये अपना हेडलाइंस है, फिर उसके बाद जो लिखा है, इट इज वेरी सिंपल अगेन। ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ अदर पार्टी एड्रेस्ड, and not merely with a view to disclosing intention of making an offer. ओके, मैं अगर आपसे कहूं, आपके सामने ऐसे कैजुअली अपनी बातें हो रही हैं, मैं आपसे अगर ऐसे कहूं बच्चों कि सोच रहा हूं गाड़ी बेच दूं 10 लाख में, ऐसा सोच रहा हूं यार, बहुत हो गया, अभी 2 साल हो गया गाड़ी को, अब ये गाड़ी सोच रहा हूं बेच दूं 2 लाख रुपए में या 10 लाख रुपए में, जो भी मिले, तो क्या ये ऑफर है? क्या ये ऑफर है? नहीं है बच्चे, ये ऑफर नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने अपने एक इंटेंशन बताई, सोच रहा हूं कि अब ये गाड़ी बेच दूं, इसका मतलब उस वक्त मैंने ऑफर नहीं दिया। हाँ, लेकिन आगे ऑफर देने की इंटेंशंस थी मेरी। अब वो ऑफर मैं आपको दे दूं या किसी और को दूं, दैट्स एंटायरली डिफरेंट मैटर। बट अभी मैंने जो कहा, दैट वाज नॉट एन ऑफर, इट वाज जस्ट एन माय विलिंगनेस टू सेल दैट पर्टिकुलर, ओके, कार। ओके, आंसर करेक्ट है, बरोबर है। तो बच्चों, आई थिंक पॉइंट नंबर 4 पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। पॉइंट नंबर 5 रीड करो। ऑफर मे बी कंडीशनल। बच्चों, मस्ट बी कंडीशनल नहीं। सी ए स्टूडेंट, अलर्ट हो जाओ।
मस्ट बी कंडीशनल वर्ड आया तो आपको फॉल्स लिखना है। ऑफर मे बी कंडीशनल, ऑफर कैन बी विथ कंडीशन। ओके, ऑफर देते समय ऑफरर मे पुट सर्टन कंडीशन। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न कर रहा हूं, आपको टाइप करना है आंसर। ऑफर मे बी कंडीशनल, ये पढ़कर 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से, आई एम सॉरी, 5 टाइप्स ऑफ ऑफर में से कौन सा ऑफर आपको समझ में आता है? टाइप करो। लिप्शा, कुसुम, सफीन। मैं आपको बता दूं तो जितने बच्चों ने आंसर दिया है सबका आंसर रॉन्ग है। सिर्फ एक स्टूडेंट, आई थिंक, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। लैंसी। अच्छा, आई थिंक, हाँ हाँ हाँ, लैंसी ना, लैंस। अच्छा, थोड़ा नाम में प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। लैंस ने, हिमांशु ने, चेतना ने, अनिकेत ने, अभिशंकर ने सही आंसर दिया है बच्चों। आप जरा सोचो कि आपने क्या गलती की है। शुरुआत में बहुत बच्चों ने मुझे काउंटर ऑफर आंसर दिया है। बच्चों, यही होता है एग्जाम में, इसी को हम सिली मिस्टेक कहते हैं। जब मैंने आपसे पूछा कि ऑफर में बी कंडीशनल, तो इसमें टाइप्स ऑफ ऑफर में आपको कौन सा ऑफर याद आया? तो काउंटर ऑफर वाज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इट वाज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। होने दो रॉन्ग आंसर, टेंशन नहीं लेना। स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर वाज द राइट आंसर। बच्चे देखो, ऐसा ध्यान देना है आपको, नहीं तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस का जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसमें फंस जाएंगे आप एंड आप रॉन्ग कर देंगे आंसर। आर यू गेटिंग एवरीवन? जिन्होंने मिस्टेक किया था समझ में आ गया? होने दो मिस्टेक, यस नो में लिखो। समझ में आया क्या अभी भी किसी को आर्ग्यूमेंट्स? यस, हाँ। लिप्शा, पूजा, जिन्होंने भी मिस्टेक किया था, यस। सैवियो, यस, यस, वेरी गुड। एंड जिन्होंने स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर आंसर दिया था, सवाल ही नहीं, वो एकदम राइट ट्रैक पे सोच रहे थे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा। बच्चों, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो वापस पूछना मेरे से कि सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है बच्चों? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों उसके नीचे के एग्जाम्पल दिया है, देखो। एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द ऑफरर। सीधा सेंटेंस, ऑफर कैन बी मेड, मैं कोई ऑफर दे सकता हूं विथ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर मैं ऑफर आपको दूं एंड मैं कहूं कि आप मेरा ऑफर तभी एक्सेप्ट करना when you are ready to make me payment by using internet banking, तो इसका मतलब दिस इज व्हाट आई हैव पुट कंडीशंस ऑन माय ऑफर कि मुझे पेमेंट चेक से नहीं चाहिए, ऑनलाइन ट्रांसफर करो पेमेंट। दिस इज व्हाट द कंडीशन आई हैव पुट इन माय ऑफर एंड आई कैन डू दैट। Offerer has the right to put certain conditions, okay, at the time of giving offer.
आपको ठीक लगता है तो यू एक्सेप्ट, अदरवाइज यू रिजेक्ट। बच्चों देखने में बहुत वन लाइनर है, सिंपल लगता है, लेकिन सिंपल है नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज किया जा सकता है आपको एग्जाम में। ओके, स्टैंडिंग ऑफर कैन ऑल्सो बी कंडीशनल। यस, आप बोल सकते हो बिकॉज स्टैंडिंग ऑफर इज ओपन ऑफर टिल पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स मैं ऑफर तो दे रहा हूं लेकिन ओनली फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑफर के साथ टाइम बाउंड, ये मेरा कंडीशन है, ये मेरा एक प्रकार से कंडीशन है। प्रिया, यू आर राइट। ओके, स्टैंडिंग ऑफर कैन ऑल्सो बी ए कंडीशनल। यस, बट पहला जो आंसर आपके माइंड में इमीडिएटली आना चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक। नाम से ये स्पेसिफिक, स्पेशल। व्हेन आई यूज द वर्ड स्पेशल, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि उस ऑफर के साथ मेरा कोई स्पेशल कंडीशन अटैच है। ओके, स्टैंडिंग ऑफर कैन ऑल्सो बी ए कंडीशनल, यू आर राइट। नाउ नेक्स्ट बच्चों, पॉइंट नंबर 5 में जो कंडीशनल ऑफर में भी कंडीशनल जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके नीचे एक एग्जांपल दिया है, पढ़ो, सभी लोग पढ़ो, रिस्पॉन्स दो, समझा कि नहीं समझा। I hope you understand the word RTGS and NEFT etc. बच्चों, आप बैंक में जाते हो, अगर मनी ट्रांसफर करना है हमें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि मुझे वसई से पैसे ट्रांसफर करने ऑनलाइन थ्रू माय बैंक अकाउंट, कहाँ ट्रांसफर करने हैं? फॉर एग्जांपल दिल्ली में टू माय रिलेटिव, तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं यूजिंग RTGS और NEFT facility given by the bank. Okay, so they are the methods of transferring money online. Okay, और बाकी कुछ नहीं है, ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। So offerer may ask for payment by RTGS or NEFT etc. That means offerer while selling the goods to offeree क्या कह रहा है कि I am ready to sell the goods provided you make me payment by using RTGS and NEFT. इसका मतलब क्या कि जो ऑफर दे रहा है गुड्स सेल करने का, उसके साथ कंडीशन है पेमेंट को लेकर। तो अब अगर मुझे ये बताओ, ऑफरी जो है वो इसके अलावा कोई और एंगल से पेमेंट करना चाहे, तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड किया जा सकता है, बिकॉज ऑफरी इज नॉट following the conditions which is put up by the offerer. Okay, very important. Yes, Abhishankar, I think you are giving that full form, you are right. बैंक से रिलेटेड मैंने कहा ना, अभी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। NEFT एंड RTGS में दे आर द मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, RTGS NEFT में डिफरेंस है अमाउंट को लेकर। आई थिंक समथिंग 2 lakhs के ऊपर जाएंगे तो हमें RTGS करना पड़ता है, 2 lakhs के अंदर है तो NEFT करना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, लीव इट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। द ऑफरी विल हैव टू एक्सेप्ट, बच्चों रीड करो एग्जांपल में, द ऑफरी विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफरर, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो सकता है। ओके, ठीक। अब बच्चों मेरा एक एग्जांपल है, मैंने आपको ऑफर दिया बाय पोस्ट, यानी लेटर पोस्ट किया, नॉर्मल लेटर होता है ना, पोस्ट कर दिया, एंड पोस्ट यूजिंग पोस्ट लेटर मैंने आपको ऑफर भेजा, एंड उस ऑफर में मैंने क्लियर कट लिखा है कि अगर आप एक्सेप्टेंस देते हैं ऑफर को, अगर आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो लेट मी नो बाय स्पीड पोस्ट, आप अपना एक्सेप्टेंस स्पीड पोस्ट से दो। तो आपको लगता नहीं मैंने मेरे ऑफर में कंडीशन पुट अप किया है कि इफ यू आर एक्सेप्टिंग माय ऑफर लेट मी नो बाय यूजिंग स्पीड पोस्ट। एंड अगर मैं कहूं कि आपने स्पीड पोस्ट के
छोड़कर नॉर्मल पोस्ट से ही मुझे एक्सेप्टेंस भेजा, तो कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड समझू कि इनवैलिड? टाइप करो। मेरा क्वेश्चन समझा बच्चों? मैंने ऑफर में क्या कहा था आपसे कि लेट मी नो बाय स्पीड पोस्ट, ताकि मुझे जल्दी से पता चले आपके एक्सेप्टेंस के बारे में विद इन 3 days। बट आपने नॉर्मल लेटर पोस्ट किया और वो घूमते घूमते 15 दिन के बाद मेरे पास आया, तो क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया? बच्चे इनवैलिड हो गया। यस यू आर राइट। इनवैलिड इसलिए हो गया क्योंकि मैंने मेरे ऑफर के साथ जो कंडीशन पुटअप किया था वो कंडीशन ऑफरी ने फॉलो नहीं किया, एंड जब ऑफरी ने फॉलो नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट मे बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। बच्चों मेरे सेंटेंस पर ध्यान दो, इट मे बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। हो सकता है ऑफरर उसे इनवैलिड बोल दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऑफरर उसे हाँ भी बोल दे। दोनों पॉसिबिलिटी है। गेटिंग दैट? बट डोंट यूज द वर्ड वॉइडेबल, प्लीज। या डोंट यूज द वर्ड वॉइडेबल। ओके, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों ये आपको थोड़ा लीगल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि एक बार आप ये समझ जाओगे तो भूलोगे भी नहीं, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूलना भी नहीं चाहिए। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट या असेंशियल एलिमेंट टू क्रिएट वैलिड ऑफर? आप अगर हेडलाइंस पढ़ रहे हो बच्चों, जरा ध्यान से पढ़ो पहले क्या लिखा है। द ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। बाकी कुछ मत पढ़ो, ओनली हेडलाइंस पर ध्यान दो। ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म, शुड कंटेन नहीं, शुड नॉट कंटेन द टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ये जो हेडिंग मैंने अभी पढ़ा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हेडिंग से आपको कुछ समझा क्या, बाकी कुछ मत पढ़ो बच्चों, तो मुझे लगता है 90% स्टूडेंट मुझे ना बोलेंगे सर कुछ नहीं समझा। ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, कुछ नहीं समझा। तो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है? तो लॉ क्या कहना चाहता है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। इफ अगर मैं आपको ऑफर देता हूं टू सेल माय कार, लेट अस टेक एग्जांपल, टू सेल माय मारुति कार, सेकेंड हैंड कार नाम, फॉर ₹50,000। मैंने आपको ऑफर दिया और साथ में ये कंडीशन पुटअप किया कि आप अपना एक्सेप्टेंस, बरोबर है, 7 दिन के अंदर दे दो। टाइम भी लगा दिया कि 7 दिन के अंदर आप मुझे बता दो। अब 7 दिन के अंदर अगर आपने मुझे नहीं बताया कुछ, आपने मेरे ऑफर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं क्या अजम्पशन करूं? क्या आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे अजम्पशन करूं? टाइप करो, क्या ऐसे अजम्पशन करूं क्या? मैंने कहा था 7 दिन में मुझे बता देना खरीदना है कि नहीं खरीदना है, आपने कुछ नहीं बताया, तो अजम्पशन क्या करूं? आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। यस और नो? नो, वेरी गुड, नो। यानी आपको जो समझा, आपको अभी जिस एग्जाम्पल में जो मैंने बताया वो अगर आपको समझा, तो उसका मतलब वो जो हेडलाइंस है ना, वो हेडलाइंस का मतलब यही। बट सी द लीगल लैंग्वेज दे हैव यूज्ड। जब हम शुरुआत में पढ़ेंगे तो टेंशन आ जाएगा, अरे बाप रे क्या है ये, बट ये एकदम सिंपल है बस बच्चों। देखो समझने के बाद बहुत सिंपल लगेगा। ओके, मैंने ऑफर दिया, मैंने कहा मुझे ये ऑफर आपको जो दे रहा हूं इसका मुझे आंसर 7 दिन के अंदर दे दो। आपने 7 दिन तक कोई जवाब ही नहीं दिया, तो इसका मतलब मैंने ये अजम्पशन नहीं करने का कि यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर।
ऑन द कॉन्ट्ररी आई शुड एज्यूम द रिवर्स वे, है कि नहीं? आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब मैं समझ जाना चाहिए कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माई ऑफर, आपने रिजेक्ट किया मेरा ऑफर। ओके बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट अस रीड द डिटेल्स गिवन। पॉइंट नंबर 6 बच्चों, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको क्लियरली? जरा यस नो में आंसर दो, 2-3 लोग। स्क्रीन दिखाई दे रहा है बच्चों सबको? यस। सो बच्चों उसमें क्या लिखा है देखो। थस one cannot say that if acceptance is not communicated by certain time, यानी this is from the angle of offeree, if acceptance is not communicated by certain time, the offer would be considered as accepted. Okay, that is what they are trying to say. अगर ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस पर्टिकुलर टाइम तक नहीं दी, उसका मतलब ऑफरर ने ये नहीं निकालने का कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी लड़की को शादी का ऑफर दिया, विल यू मैरी मी, ऑफर दिया ना, ये ऑफर है। एंड मुझे 1 महीने के अंदर बता देना। 1 महीना क्या बच्चों, 1 साल हो गया, कोई जवाब ही नहीं आया। आप बताओ, क्या मैं अजम्पशन करूं कि शी हैज एक्सेप्टेड माय ऑफर? सवाल ही नहीं बच्चों, है ना? सवाल ही नहीं। 1 साल हो गया मतलब समझ जाने का कि उसको मेरा चेहरा भी नहीं देखना है, हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? आई होप आप समझ गए हो। द ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म नॉन कंप्लायंस विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। बच्चे जब पहली बार पढ़ते हैं तो उनको टेंशन आ जाता है, अरे क्या लिखा है ये, लेकिन है बहुत सिंपल बच्चों। ओके, अब आप एग्जाम्पल पढ़ो बच्चों, एग्जाम्पल पढ़ो। थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है कुछ बच्चों को, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आफ्टर रीडिंग द एग्जाम्पल गिव मी रिस्पॉन्स whether you understood or not. Read the given example on your screen. Have you understood the example? Yes. Okay. So I think मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 6। ओके, सो मैं अजम्पशन कर लेता हूं कि आपको समझ में आ गया ये। ठीक है बच्चों, आपके आंसर से लग रहा है कि एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। ओके, लेट अस गो टू द 7 पॉइंट। वो डिस्कशन का बात ही नहीं बच्चों, वो टाइप्स ऑफ ऑफर से आया। देखो, ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, ये तो 2 ही प्रकार के, हमने तो 5 पढ़े, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। ओके, सो जस्ट लीव इट, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पॉइंट नंबर 7, टाइप्स ऑफ ऑफर्स। ओके, सो जस्ट लीव दैट। पॉइंट नंबर 8 बच्चों, पॉइंट नंबर 8, यहां से डिस्कशन की लेवल थोड़ी बढ़ जाएगी, सो बहुत ध्यान से सुनना है। एंड बच्चों कोई पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इमीडिएटली डाउट पूछने का है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट पॉइंट नंबर 8। बच्चों जब हम कहते हैं ना ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड गिव अराइज टू एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट का इंटेंशन अगर लीगल ऑब्लिगेशन का हो तो इट गिव अराइज टू कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यू नो दैट। तो ऑफर देना एंड उसका एक्सेप्टेंस, यहां तक तो क्लियर है अभी आपको, लेकिन एक और वर्ड आपके सामने कभी कभी आ जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। एक होता है ऑफर एंड एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। आई थिंक आपने FY जैसे एंड SY जैसे लेवल पर कुछ बच्चों ने
इश्यू ऑफ शेयर्स करके टॉपिक पढ़ा होगा अकाउंट्स में। आपके अकाउंट्स टीचर ने इश्यू ऑफ शेयर्स ये टॉपिक पढ़ाया होगा। विकास सर है ना ये टॉपिक? हाँ, इश्यू ऑफ शेयर्स करके टॉपिक पढ़ाया होगा। आपने देखा होगा कि कंपनी जब कोई नया ऑफर देती है, इशू करती है, नया इशू शेयर्स का देती है, मार्केट में लाती है, तो उसके पहले देखो ना प्रोस्पेक्टस शायद कुछ देते हैं कंपनी। सुना होगा आपने कि कंपनी कुछ प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो प्रोस्पेक्टस जो इशू करती है, बरोबर है बच्चों, वो प्रोस्पेक्टस क्या है? क्या कंपनी आपको शेयर्स बेचने का ऑफर दे रहा है क्या, जिसे पढ़कर आप एक्सेप्ट करते हो? धवल हाँ नहीं गलत भैया, ये ऑफर नहीं है। कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू करना ये ऑफर नहीं है, ये आपको इनविटेशन है कि आप ऑफर को पढ़ो, कंपनी के बारे में जानो, समझो, एंड सही लगे तो शेयर्स खरीदने का एप्लीकेशन करो। ये आपको ऑफर देने के लिए ऑफर है। इट इज एन ऑफर टू गेट एन ऑफर। आई डोंट नो हाउ मच यू आर गेटिंग दिस। तो बच्चों, जब कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो यू कांट कॉल दैट प्रोस्पेक्टस एज ऑफर। In fact, it is invitation to an offer. अभी आप प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे? Yes, Lance, you are right. Prospectus gives information about the company. You are right. And giving information is not an offer. Try to understand. That is what the law is trying to say. Lance ने immediately point कैच कर लिया है। प्रोस्पेक्टस का मतलब इंफॉर्मेशन देना। मैं अगर सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दूं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मैं मेरी गाड़ी बेचने जा रहा हूं, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मैं मेरा घर बेचने जा रहा हूं, दैट डजंट मीन कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फिर आप वो सुन के हो सकता है आप मुझे ऑफर दे दे, गिरीश सर मुझे ही बेच दो ना घर, ऐसा बोल दे आप। आर यू गेटिंग माई लैंग्वेज? तो बच्चों, दिस इज द पॉइंट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड गिविंग एन इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइजमेंट जब आता है, एडवर्टाइजमेंट आपने न्यूज़पेपर या वगैरह में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा, तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ के ये नहीं बोल सकते कि आपको ऑफर दिया है ना आपने एक्सेप्ट किया। आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ो एंड अब आप जाके खरीदने का ऑफर दो। अब सामने वाला बेचे नहीं बेचे, दैट्स एंटायरली डिफरेंट मैटर। ओके, तो अब लॉ आपको वही बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड गिव अराइज टू कॉन्ट्रैक्ट, बट इन्विटेशन टू एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड does not create any legal obligation. Just because मेरी दी गई इंफॉर्मेशन आपने सुनी, that doesn't mean कि हमारे बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है। कितना बड़ा डिफरेंस है देखो ना। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, बट इन्विटेशन टू एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड it does not give arise to any contract. Okay, that is what you have to understand. Okay, so बच्चों, प्रोस्पेक्टस, कंपनी का प्रोस्पेक्टस इश्यू करना, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना। जैसा मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दूं कि वसई में मेरा 2 रूम किचन फ्लैट मुझे बेचना है, इंटरेस्टेड पार्टी आकर कांटेक्ट करो। तो बताओ बच्चों, मैंने ये ऑफर दिया कि ऑफर के लिए इनवाइट किया लोगों को? सेंटेंस को ध्यान से सुनो। मैंने ये ऑफर दिया कि मैंने ऑफर के लिए इनवाइट किया लोगों को?